ऑलराइट, आवाज आ रही है? चले, परफेक्ट है, आवाज आ रही है, गुड, थैंक यू। अच्छा जी, मैं दोबारा से अपना क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ। ठीक हो गया जी, कमिंग बैक टू दिस। नाउ अगेन द ऑडिट वर्क, स्टार्ट करते हैं रॉकवेल, ठीक है जी। द ऑडिट वर्क फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 इज नियरली कंप्लीट। हमने हमने इसमें बात की थी कि ड्राफ्ट एफएस हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, $495 million, और टोटल एसेट्स है $4.6 billion, ठीक है जी। Each is the basis of modified opinion extract. In their calculation of goodwill on the acquisition of the new subsidiary, the directors have failed to recognize consideration which is contingent upon meeting certain development targets. The directors believe that it is unlikely that these targets will be met by the subsidiary company and therefore have not recorded the contingent consideration in the cost of the acquisition. They have disclosed this contingent liability fully in the notes to their financial statements. We do not feel that the director's treatment of the contingent consideration is correct and therefore do not believe that the criteria of the relevant standard have been met. If this is the case, आप देखें कितना होशियार है ये। If this is the case, it would be appropriate to adjust the goodwill balance in the statement of financial position. We believe that any required adjustment may materially affect the goodwill balance in the statement of financial position. Therefore, in our opinion, the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of Hopper Company, Hopper Group, and of the Hopper Group's financial performance and cash flow for the year then ended in accordance with international financial reporting standards. Now, we draw attention to the note to the information FS, which describes the uncertainty relating to the contingent considerations described above. The note provides further information necessary to understand the potential implication of the contingency. Now, if you look at this, the first and the para basis of modification, do you see that there is something wrong with this? What do you think? आपकी आपकी क्या points है इसमें? आपको क्या लगता है कि क्या क्या मसले मसाइल हैं इसके अंदर कि एक कंटीजेंट कंसिडरेशन यहाँ पे बता रहे हैं ये और कह रहे हैं भाई हम तो सबसे पहली बात तो ये है कि हेडिंग इज रॉन्ग। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं अब ये वन बाय वन आपके साथ लेके चल रहा हूँ। तो मैं अब शेयर कर देता हूँ अपना ये स्क्रीन, ठीक है जी। सो इसमें आ रही है सबसे पहली बात रॉकवेल। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई हेडिंग इज इज इनअप्रोप्रिएट। होना क्या चाहिए? व्हाट्स रॉन्ग विद द हेडिंग? होना क्या चाहिए? बेसिस फॉर एडवर्स होना चाहिए, ठीक है जी। आइए से एन, सो when the opinion states that the FS do not present true and fair view, it represents adverse opinion as per ISA 705, as per 705, and the heading should be, because मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने इसलिए बात लंबी बात क्यों करी यहाँ पे, should be basis for adverse opinion। ये इतनी लंबी बात मैंने क्यों की भाई? when the opinion stated that FS do not present true and fair view, it represents adverse opinion as per ISA 705 and the heading should be basis of adverse opinion. Why do you think कि मैंने ऐसा किया है? मैंने इतनी लंबी घुमा के बात क्यों कर दी है? वैसे ये भी तो बोल सकता था कि यार हेडिंग इनअप्रोप्रिएट है, इट शुड बी बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। मैंने ये काम क्यों किया? जरा सोचेंगे यार इस बात पे, थोड़ा सा बताएंगे मुझे इस पे?
यानी मैंने ये ओपिनियन के हिसाब से अप्रोप्रिएट हेडिंग मेंशन रीजंस शुड बी गिवन रेफरेंस क्राइटेरिया इज नेसेसरी। एक बात तो ये है कि हाँ ये बात सही है कि इसका रीजन यही है कि बेसिस पर एडवर्स ओपिनियन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसके बेसिस है। हाँ मुदस्सिर, ताकि उसने जो ओपिनियन दी है उसके मुताबिक बता सकें। सही है, 10 मार्क का सवाल, ये बात सही है अफराज। लेकिन जो सब्सटेंटिव रीजन है ना इसके पीछे ये लिखने का, वो ये है कि देखो उसने आप उसको ये बताना चाह रहे हो कि देखो आपने जो ये लिखा है ना उसके मुताबिक ये होता है। अभी मैं उससे अग्री करता हूँ नहीं करता हूँ, मैंने उसके बारे में गुफ्तगू नहीं की। दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड अप योर आर्गुमेंट। तो पहली बात ये है कि हेडिंग इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। और ना दूसरा जो पॉइंट नजर आता है, somebody said, रबिया ने कहा नेम ऑफ सब्सिडरी नॉट मेंशन, ठीक है जी। सो ऑफ कोर्स जब आपने हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव बीन इन्वॉल्वड इन ड्राफ्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफिकेशन? प्रैक्टिकली कितने लोग इन्वॉल्व रहे हैं? वैसे हमारे पास कोई 36 लोग हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन एबल, हैव बीन गुड, हैव बीन लकी इनफ कि यार इन्वॉल्व रहे हैं? नेम ऑडिट शुडंट बी मेंशन, नहीं कि मैं तो ऑडिट में ही नहीं होता। अच्छा, कहाँ होते हो भाई? यस बट ओल्ड एज, ऑलराइट, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ड्राफ्टिंग के अंदर ना, क्योंकि ये एक बहुत आपका एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, फाइनेंशियल एडवाइजरी। अच्छा चलो, बेहतर जगह पर हो, अच्छी बात है। ऑडिट में कुछ भी नहीं है, ना पैसा ना इज्जत। अच्छा बल नॉट इन्वॉल्व बट बिकॉज आई एम एन एडवाइजरी। अच्छा, वेरी नाइस, ओके। इंडस्ट्री टैलेंट गुड है। अच्छा यार देखो, आप जब ऑफिशियल कोई लेटर देते हो ना, तो उसके अंदर आप तमाम तरह चीज़ों के बारे में बड़ा कॉन्शियस रहते हो। फॉर एग्जांपल आप उसमें ये बताते हो कि अगर आपने कोई स्टैंडर्ड को रेफर कर रहे हो तो देन यू राइट द फुल नेम ऑफ द स्टैंडर्ड। सो दैट्स आल्सो नॉट देयर बिकॉज उन्होंने वहां पर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड का रेफरेंस यूज नहीं किया। जैसे मुझे यहाँ पर नजर आया, criteria, we do not believe that the criteria of the relevant standard have been met. That's also something not really good to say. So आप प्रोफेशनल अंदाज में उसको प्रेजेंट करते हो। सो रेफरेंस ऑफ रेलेवेंट स्टैंडर्ड, यहाँ पे कौन सा रेलेवेंट स्टैंडर्ड है हमारे पास, जरा बताओगे मुझे? रेलेवेंट स्टैंडर्ड नॉट मेड, ठीक है। उसमें हमारे पास कौन सा है जी? लोगों पे चैट आ रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, IFRS 3 एंड IS 37 IFRS 3 बोलता है कंटीजेंट कंसिडरेशन जो भी हो, किसी भी तरह की उसकी वो हो, लाइक्लीहुड हो, आप उसको रिकॉर्ड करें। तो आप कंटीजेंट कंसिडरेशन जो है उसमें आप उसको रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, विच इज IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशंस, ठीक है। आप ये आपको बताना चाहिए। सो शुड हैव मेंशन्ड, मैं बहुत ब्रीफली लिख रहा हूँ, ऑफ कोर्स आप इसके जुमले आप थोड़े से बेहतर नोक पलक सवार सकते हैं मेरे ख्याल में। इसके अलावा रबिया का एक पॉइंट था विच आई वाज लुकिंग एट वाज, रबिया ने शुरू में क्या कहा था? नेम ऑफ सब्सिडरी इज नॉट मेंशन। तो वन मोर थिंग, नेम ऑफ सब्सिडरी, ये भी आप बताते हो, रेफर करते हो कि यार आप ये नहीं कहते हो कि यार कोई एक सब्सिडरी में, जैसे आप दो बहुत सारे लोग देखे होंगे ना आपने इस तरह के, बोला कहाँ पर हो? मैं एक जगह पर हूँ। क्या कर रहे हो यार? एक काम कर रहा हूँ। तो भाई क्या कर रहे हो, कहाँ पे, किससे बात कर रहे हो यार? एक बंदे से बात कर रहा हूँ। तो वो वाली बात है, नेम ऑफ सब्सिडरी नॉट मेंशन। सही है। सो ये मेंशन होना चाहिए ऑफ कोर्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लस व्हाट एल्स डू वी हैव, और कौन से पॉइंट्स हैं? सॉरी यार, और कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें? अमाउंट ऑफ टोटल कंसिडरेशन, कंटिजेंट कंसिडरेशन एंड गुडविल नॉट मेंशन, ठीक है जी रबिया, दैट्स आल्सो गुड पॉइंट। Amount of contingent consideration is also not mentioned.
amount of contingent consideration not mentioned. ISA 705 says, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप हीरो बन सकते हैं, थोड़ा सा states that the amount of misstatement should be quantified, ठीक है. So this will, अच्छा इसमें आप of course इसकी implications यानी यूजर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो अपने आंसर को, इसमें कोई बुराई नहीं है. When you have time, when you have marks, दोनों बातें, टाइम भी हो मार्क्स भी हो. So the amount of contingent consideration not mentioned, ISO 17005 amount of the statement should be quantified. This brings clarity to users of the potential impact. अच्छा और बताओ, और बताइए. क्वांटिफिकेशन और कंटीन्यूअस कंसिडरेशन इफेक्ट ऑन गुडविल, ठीक है मैं जरा देख रहा हूँ आपके. जब बात materiality, materiality not calculated, the amount not materiality not calculated is not going to be reported in audit report anyways. materiality तो वैसे भी audit report में नहीं आती है ना भाई. हम तो material जज करने के बाद अगर होता है material में statement यानी क्वालिफिकेशन या एडवर्स, तो फिर हम डालते हैं या नहीं डालते हैं. मतलब हम बताते नहीं है कि लोगों को यार बेंचमार्क क्या है हमारा ऑडिट रिपोर्ट में, ऐसा तो नहीं होता मेरे ख्याल में. So materiality as per what benchmark, ठीक है. Would have been sentence should be there. अच्छा now अभी इसी potential impact के साथ अगर मैं इस बात को ऐड कर दूं, so uh, uh, as a standard, as a as a matter of practice, the amount of misstatement, the effect of misstatement, sorry, the effect of misstatement should be presented as as it affects assets, income, for example, sorry, expense या for example profit, जो भी है, ठीक है. तो आप इसमें would have been impact to show the possible impact on different account heads, ठीक है जी, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अच्छा अब हमारे पास वुड हैव बीन सेंटेंस शुड बी देयर, पर्टिकुलरिटी एज पर व्हाट बेंचमार्क. अच्छा आप जो सवाल एहतशाम आपकी ही बात को ऐड कर दूं, जो आप कहना चाह रहे हो ना, शायद वो ये कहना चाह रहे हो, जो आपका जो आपकी इंटेंशन है स्टेटमेंट इज मटीरियल. हाँ बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाह रहा था कि जो आप कहना चाह रहे हो ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि यार क्या वाकई में ये मिस स्टेटमेंट है भी या नहीं है. बिकॉज ऑन व्हाट बेसिस ये आपने उसमें तो नहीं बताएंगे अपनी रिपोर्ट में, लेकिन आप ये जरूर बताते हैं. यानी ऑन व्हाट बेसिस का मतलब ये है कि वो आप मतलब आप बेंचमार्क नहीं बताते कि यार प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% से ऊपर गई है तो हम इसलिए मिस स्टेटमेंट कर रहे हैं. हम तो सिर्फ ये बोलते हैं कि यार इट इज मिसस्टेटेड, इट इज मटेरियल मिसस्टेटेड, ठीक है. तो आप यहाँ पे ये जरूर बताना चाहोगे नॉन रिकॉग्निशन of contingent liability would would um, would would less likely be would less likely result in adverse opinion, and in fact this if the matter is material, so and not pervasive, then a qualified opinion would be appropriate.
based on generally. So ये आप for example would be appropriate. However, the amount of misstatement should be compared with the benchmark. Important to users. फंडामेंटल ठीक है, थोड़ा सा और इंग्लिश। अच्छा जी, बहरहाल सर बेसिस वाले पैरा में तो इन आवर ओपिनियन आता ही नहीं है। वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन, बहुत अच्छी बात बोली आपने। यही बात आगे, बल्कि मैं आपसे पहले वाला पॉइंट जरा कवर कर लूं वरना मैं ये भूल जाऊंगा। और टू शुड आइडेंटिफाई नोट एक्स स्टूडेंट टू द एफएस। हाँ, ये हमारे पास नोट द रेलेवेंट नोट the relevant node should be referred instead of doing what ये सुनने क्या in the calculation। यहाँ पे कोई ऐसी बात नोट वाली करी है? हाँ बिल्कुल, ये रेफर ही नहीं किया ना, मतलब तो हाँ होना चाहिए, the relevant should also be referred। ठीक है, नोट टू एफएस be referred in the modification para। अच्छा फिर बताइए जी, आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन पैरा तो किसी ने बताया था, बेसिस वाले ओपिनियन बेस वाले पैरा में तो एनआर ओपिनियन आता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, तो बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में तो ओपिनियन आता है। सो द ओपिनियन पैरा should clearly come under a separate heading। ओपिनियन क्या बोलते हैं इसको? ओपिनियन पैराग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? ओपिनियन पैराग्राफ हेडिंग इज मिसिंग है, ओपिनियन पैरा बोलते हैं, ओपिनियन बोलते हैं सिर्फ। आई थिंक मेरा ओपिनियन ही बोलते हैं शायद से। ओपिनियन हेडिंग ओपिनियन पैराग्राफ, yeah, heading opinion paragraph and opinion separate heading opinion and instead of okay, इसकी भी गलती बतानी है ना थोड़ी सी। instead of merging it in submerging it in modification para। ठीक है जी। 9 और इसके अलावा क्या गलती है जी? It should be before the basis for modification para। adverse qualified opinion, adverse slash qualified opinion क्या मतलब भाई? अच्छा, अफराज कह रहे हैं भाई it should be before the basis of modification para। इसके साथ ही पॉइंट लिखते हैं, पर अलग से हम इसके साथ भी लिख सकते हैं। एंड तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ सेपरेट पॉइंट एट इट शुड बी before the basis should come on top before the basis of modification para। ठीक है जी, शुरू में आता है ये, स्टार्ट में। हाँ, सेम मैटर पे एडवर्स एनयूएमपी चला गया भाई। देखो किस किस तरह की गलतियां, बिल्कुल ही जूनियर है निका। सेम EUMP seems inappropriate as EUMP is given for the matter that is resolved and adequately adjusted and disclosed by management। ठीक है जी। The issue of contingent
consideration does not meet does not meet this criteria, and therefore it should not be reported in reported therein. ठीक है. further note भी आता है ना, further if UMP is given, it must refer to note to FS, and बल्कि इसको अलग से लिख देना, अलग से पॉइंट को हम जाया करें. Further, if UMP is given, it must refer to note to FS. As per ISA, हीरो बन जाता है थोड़ा सा. ठीक है, 706 and क्या कहते हैं, that clearly describes the matter which in our case does not exist. सही है जी. अच्छा जी, आगे क्या आ रहा है हमारे पास? ओ भाई, आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट लिख दिए, मैंने पढ़े नहीं. आगे हेडिंग शुड बी लाइक दिस. सेम मैटर, EMP should not be there. REMP पर नोट नंबर मेंशन नहीं. Emphasis on matter paragraph should not mention the issue described in the basis of modification paragraph, rather it should mention the matter in relation to that. Sir, can we say that if matter is correctly adjusted by the management and EMP is right in this fact, does not एडजस्ट तो हुआ नहीं ना. अगर हुआ होता तो फिर तो ये तो बहुत ही कोई अजीब सी बात हो जाएगी कि उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है और ये रिपोर्ट में कह रहे हैं कि भाई कंडीशनल लायबिलिटी एडजस्ट नहीं हुई भी. ये तो मेरे ख्याल में नहीं, assumption लेना सही नहीं है. या फिर ये कहना भी if the matter is correctly adjusted by management then UMP is right in this context, just not modify. तो I think a more likely assumption will be कि यार उन्होंने adjust नहीं किया हुआ और हमारी इस वाले यानी UMP से ज्यादा वो वाला मैटर जो है ना, यानी मॉडिफिकेशन इज मोर मॉडिफिकेशन वाली बात, या मॉडिफिकेशन जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, दैट इज समथिंग मोर अप्रोप्रिएट टू डिस्कस. सर थिंक कैन भी होना चाहिए सिंस न्यू बिजनेस एक्विजिशन है. कैन भी होना चाहिए, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं ना, डेफिनेटली वो हम लिख देंगे पॉइंट. अभी इट शैल कंटेन, मैं जरा पढ़ लूं, बहुत सारे मैसेज कहां गया. इट शैल कंटेन स्टेटमेंट दैट आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर. बिल्कुल ठीक बात है. कंपनी भी लिस्टेड है. Name of director should be mentioned as they are directly held responsible in basis of adverse opinion. Year end नहीं mention. F is not give a true and fair view. यार मैं आप लोगों के पॉइंट कॉपी शॉपी कर रहा हूँ बहुत सारा टाइम. ठीक है, आपके पॉइंट में बिल्कुल ठीक है. एक पॉइंट जिससे मैं इसको पिक कर रहा हूँ, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ, वो नेम ऑफ डायरेक्टर शुड नॉट बी मेंशन. हंजला ने कहा, बिल्कुल सही कहा. ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके, दैट्स अ गुड पॉइंट, और ये पॉइंट होना चाहिए. कंपनी बेसिक कंटेन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइज मॉडिफाइड, ये आपकी बात यूएमपी के अंदर आ सकती है क्योंकि हम उसको क्रिटिकली अप्रेज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई आप जो रिपोर्ट दे रहे हो तो उसके अंदर ये मसाइल आ सकते हैं, तो मैं इसी में पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, फिर हमारे पास नेम ऑफ डायरेक्टर्स एफएस डू नॉट गिव टू शुड नॉट बी इन द बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा. दैट्स आल्सो अ पॉइंट जो हमने ऊपर बस मेंशन किया बता, लेकिन but you should be clearly mentioned that opinion is not modified in this regard. ठीक है, we believe that auditor is missing in the directors की जगह क्या हो गया, directors की jigs management मेंशन होना चाहिए, की जगह पे मैनेजमेंट मेंशन होना चाहिए. डायरेक्टर्स की जगह पे मैनेजमेंट होना चाहिए. अच्छा, मैंने कहीं जगह पे डायरेक्टर्स भी देखा वैसे, तो बहरहाल ये देखा तो मैंने है, बहरहाल कई जगह पे देखा है मैंने ये. बहरहाल मैनेजमेंट ज्यादा यूज होता है, ज्यादा प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है. कंपनी भी इस्तेमाल होता है, द कंपनी हैज नॉट. ठीक है, तो आप ये सर कंपनी हैज नॉट डन दैट, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेम ऑफ डायरेक्टर्स you can instead use the word
the company has not or the management has not recognized the contingent consideration. ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो. और आपको याद है हमारा जो मोस्टली स्टेटमेंट का जो पहला जुमला है वो भी यही होता है, the management has not, the company has not. ठीक है, usage of words feel is feel believe is inappropriate. क्यों भाई, क्यों है ऐसा, क्यों ambiguous है and inappropriate है, उसकी वजह क्या है, क्या वजह है ना, एंड एवरीबडी एल्स बताइए. ये जो फील का है ना कि वी मैनेज, क्या कहाँ पे लिखा हुआ मैनेजमेंट, नहीं, we do not feel that the director's treatment of the contingent consideration is correct. Too informal, too unprofessional, very unprofessional. ठीक है जी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं यूज की, as per 7 not as per 705, quantify नहीं किया, standardization plus informal, it's not a formal language. Actually it's more than that. I think it's a deeper issue. ऑडिटर फीलिंग्स की बुनियाद पे तो कभी एविडेंस ओपिनियन देता नहीं है ना, डिसाइसिव वर्डिंग नहीं है, ठीक है, कंक्लूसिव वर्डिंग नहीं है. ये बात सही है, लेकिन मैं जरा कॉन्सेप्चुअली आपको ना बहुत फंडामेंटल बात बताऊं. जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, ओपिनियन जो है ना, किसी किसी फीलिंग, किसी सब्जेक्टिव, जैसे मुझे कोई रंग पसंद है और आपको पसंद नहीं है, तो दैट्स अ फीलिंग एक्चुअली, ये ना सब्जेक्टिविटी है. सब्जेक्ट इज लाइक अ ह्यूमन, राइट. तो मतलब मुझे कोई चीज पसंद है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो ये क्या, ये इस तरह की चीजें नहीं. whenever you conclude something as an auditor, you can't conclude things based on the feelings and emotions. You always conclude based on the audit evidence, which is persuasive and objective. ठीक है, यानी persuasive evidence, not in terms of कि आप कागज की बुनियाद पे काम करते हो. ठीक है, so यहाँ पे मैं इस बात को जरा क्लैरिफाई करूँ कि it gives an impression that the audit opinion and conclusion and auditing conclusions जो है ना, are not derived based on audit evidence instead of audit evidence, persuasive audit evidence. ठीक है, और प्लस वो आगे जाके एक और भी बात बोलता है ना, वी मे, पता नहीं क्या बोलता है वो, मे और गुडविल में भी, वी बिलीव दैट एनी रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट मे मटेरियली अफेक्ट द गुडविल. और भाई जब तुम कह रहे हो कंटीजेंट कंसिडरेशन को इफेक्ट करेगा, तो मे क्या करेगा, मतलब इट विल इफेक्ट गुडविल, गुडविल को इफेक्ट करेगा और लायबिलिटी को इफेक्ट करेगा. सो इट विल इफेक्ट द यूज ऑफ वर्ड में. मतलब मजा आ जाए ना, इस तरह कोई बंदा जूनियर मिल जाए और सामने रिपोर्ट लेके आया आपके सामने, और आप उसकी जो है ना वो बिल्कुल सारी रिपोर्ट का जो है ना वो पजामा बना दो. द वर्ड यूज ऑफ वर्ड में द यूज ऑफ वर्ड में क्या लिखा था यार वो, गुडविल एडजस्टमेंट यूज में, एंड एडजस्टमेंट may require, may affect, sorry, may affect goodwill is inconclusive. और इसके बारे में आप बहुत सारी और बातें कर सकते हो कि इट्स इनकंक्लूसिव एंड इट शोज दैट द ऑडिटर इज नॉट प्रॉब्ली क्लियर अबाउट हिज ओन ओपिनियन. तो इस तरह की बात भी आप कर सकते हो. सो दैट्स नॉट समथिंग ऑफ अ प्रॉब्लम. अच्छा, फिर क्या बात हो रही है भाई जी, ओपिनियन कट क्लियर कट होना चाहिए, रीजनेबल एविडेंस शुड प्रोवाइड परसुएसिव एविडेंस के बेस पे कंक्लूजन, डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू शुड नॉट बी मेंशन्ड रादर देन ऑडिटर शुड मेक इट्स ओन कंक्लूजन एंड मेंशन इट. डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन ना हो, ये बात सही नहीं है. डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि यार मैनेजमेंट ने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैनेजमेंट समझती है कि नहीं होना चाहिए. लेकिन कंटीजेंट कंसिडरेशन जो है ना वो आप फॉर एग्जांपल बहुत मर्तबा आप
यानी इसमें देयर इज नो सच प्रोहिबिशन कि आप डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन ना करें, लेकिन आप बहुत ही ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं कि यार डायरेक्टर्स इस बुनियाद पर नहीं कर रहे, वी बिलीव दैट और फॉर एग्जांपल या एज पर IFRS 3 business combination, the contingent consideration should be recorded irrespective of the likelihood whatever that is, आप इसको रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आप इस बात अपनी बात को रेफर कर सकते हो स्टैंडर्ड से, बट यू कैन मेंशन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट। आई हैव सीन रिपोर्ट्स जहाँ पे मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन किया जाता है कि उन्होंने किस वजह से, लेट सपोज को इनेबिलिटी है तो बताते हैं कि भाई हम इसलिए इनेबिलिटी है, मैनेजमेंट ये कह रही है, या मिस स्टेटमेंट है तो उनकी इंटरप्रिटेशन ये कहती है, तो ये बात होती है। और इट्स यूजर यूजिंग इफ लैंग्वेज इन बेसिस, ये कहाँ से आ गई, दिखाओ जरा दोबारा देख लेते हैं। इफ इफ दिस इज द केस, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे भी आप मैंने जो एंड में जो मैंने बात कही ना, द यूज ऑफ वर्ड मे एंड, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे मैं इन एडजस्टमेंट यूज ऑफ वर्ड, द यूज ऑफ इफ लैंग्वेज एंड द वर्ड मे, ठीक है, इन एडजस्टमेंट एंड बेसिस पैरा, द यूज ऑफ वर्ड मे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मेरे ख्याल में कंसोलिडेटेड शुड बी देयर। अब मेरे ख्याल में देखिए, अब हमारे पास पॉइंट्स अच्छे खासे निकल आए हैं, एंड हमने 13 पॉइंट्स लिख लिए हैं, एंड यू कैन ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई मोर पॉइंट्स ऑन दैट, एंड आई एम श्योर आप इस सवाल को, हाँ, अभी हम जब कंक्लूड करेंगे अपना वेबिनार तो उसके बाद आप इसका सोल्यूशन भी देखिएगा, और क्या देखेंगे ना, कि आपने इनमें से कितने पॉइंट्स नहीं लिखे थे। मैं अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। How many of you did not write? How many points did you guys did not write it? ठीक है, कितने लोगों ने वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई नहीं किए थे, नोट नहीं किए थे? 4 5, ठीक है। मतलब से 4 लास्ट but not written precisely, name of facility not entertained, ठीक है, ठीक है, सही है जी, सही है जी। 5। अच्छा, अब मैं जरा उसको देखें, आई ऑलवेज बिलीव इन क्रिएटिंग some sort of rules. Others were almost covered 3 points, joint related, so solved side by side, ठीक है, alright, good enough, alright। चलें, अब जरा मैं आपको ना बहुत ही क्विकली बताना चाहता हूँ कि देखें इस तरह के सवालों के अंदर किस तरह के पॉइंट्स आएंगे। सो अगर हम उसको कैटेगराइज करें, एंड आई थिंक आप लोगों ने मेरा स्टाइल देखा है पढ़ने का और पढ़ाने का, कि जब हम स्पेसिफिक इश्यूज निकाल लेना तो उसके बाद हमेशा हमें उनको ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज करना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि यार किस, और उसकी बेसिस के ऊपर एक जनरल कॉन्सेप्ट हमारे जहन में बनना चाहिए कि यार ये 4 मोटी मोटी कैटेगरीज हैं, उसमें से मसले मसाइल निकल सकते हैं। तो वो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जरा, अब मैं आपको जरा, जैसे मैंने वो बनाता हूँ ना, टेक्निक्स वगैरह बनाता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज की, जब मैं बीएमबी पढ़ाता हूँ, ऑडिट पढ़ाता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा आंसर्स के अंदर से कोई स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो आपने देखा होगा ऑडिट रिस्क के अंदर भी, रिपोर्टिंग के अंदर भी, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर भी, और बाकी तमाम एरियाज के अंदर भी, दैट वी ऑलवेज हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन, एंड दैट ऑलवेज हेल्प्स, ठीक है। तो ये तो हमने नीचे से निकाल लिया भाई हमारे अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर। नाउ लेट्स मेक ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ इट। स्ट्रक्चर जरा निकालना चाहेंगे हम कि कैसे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसे निकलता है, जरा मैं समझाता हूँ आपको। स्ट्रक्चर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अप्रेजल क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें जरा मैं आपसे ये बेसिकली ब्रॉड एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं पहले तो जरा, ठीक है। आप जरा मुझे बताइए, आपके नजदीक अगर मुझे इन 13 14 15 पॉइंट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना हो तो किस तरह की कैटेगरीज बन सकती हैं? फॉर एग्जांपल, तो पहली कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी आप क्या बनाएंगे कि किस नेचर के पॉइंट्स उस कैटेगरी में आएंगे? अगर मुझे उनको 3 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना हो इन
13-15 पॉइंट्स को, तो आप क्या बनाएंगे? क्राइटेरिया, लैंग्वेज के पॉइंट्स, ठीक है जी। तो स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज, आपने कहा ओपिनियन पैरा, हेडिंग, अमाउंट एंड क्वांटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिटी। तो जरा मैं आपके पॉइंट जरा लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको, अगर हम समझते हैं कि इसको फर्दर ब्रॉड और ब्रॉडर आइडियाज में कर सकते हैं, तो फिर दैट्स आल्सो अ गुड पॉइंट। क्लियर, वर्डिंग, वर्डिंग, फिर हमारे पास रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इन फैक्ट कंप्लीट, टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ ओपिनियन, ठीक है, एंड इट्स अप्रोप्रिएटनेस। इसके अंदर आप डाल सकते हैं, कोई पॉइंट्स आ सकते हैं। फिर इनफैक्ट कंप्लीट क्या मतलब, ना ऊपर कुछ लिखा है आपने क्या? नोट और आईएफआरएस रेफरेंस, वेरी नाइस। आईएफआरएस का रेफरेंस या नोट का रेफरेंस, ठीक है, या किसी लॉ का रेफरेंस, अगर कोई लॉ है तो, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ यू गाइस नो हाउ दिस ट्रिक वर्क्स, ठीक है जी। और बताइए, फैक्ट्स एंड फिगर्स, वेरी नाइस। सो facts and figures मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद if you want to categorize it in further understanding and structure in the context of audit, wording को मैं लिखता हूँ standardized, जो आपने आपने खुद ने भी कहा था, आपने कहा standardized word, standardized word, complete facts and figures, reporting para, standardization wording में आ गया, ठीक है, understanding and structure in the context of audit, understanding and structures in the context of audit, ठीक है, standardized wording and report and para positioning, इसमें भी कर दूं and para positioning इसमें मैं कर देता हूँ, ठीक है, वेरी नाइस। रेफरेंस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, मिसिंग इनकम्प्लीट, मिसिंग इंफॉर्मेशन लेवल के ऊपर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड गुड। फैक्ट्स एंड फिगर, मिसिंग इंफॉर्मेशन के अंदर आ गया फैक्ट्स एंड फिगर, फैक्ट्स, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर, और कोई फैक्ट, तो ठीक है, वो फैक्ट्स में आ गया, फैक्ट्स एंड फिगर्स में आ गया। और बताइए जी, ठीक है। Elements of modification like in UMP refer to note, elements of modification, very nice, very nice. Elements of modification, very nice, wonderful, good, good input. Reference to node modification, UMP quantification if possible, technicalities, wording, para positioning, ठीक है, appropriateness of the opinion, तो ये हमारा type of opinion and its appropriateness आ गया, reference to note आ गया, सही है भाई। If different elements of report go together like CAM और EMP not multiple, हाँ definitely, ये use of conclusive language, language। अच्छा, अब हमने language को भी जरा अलग से लिख देते हैं, language, ठीक है, in terms of, ठीक है, in terms of basis। So अब देखिए हमने ना, ये हमने मिलके, this is a collective knowledge and wisdom that's speaking here। So देखें, हमने मिलके एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है कि यार अगर एक ऑडिट रिपोर्ट अप्रेजल का क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, तो वो इन बातों के अलावा वो मजीद बातें मुश्किल है कि इसके अलावा इसके बाहर कुछ गिरे। सो इट विल ऑलवेज बी फॉलोइंग विद इन दीज 8 एलिमेंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप इनको फर्दर कुछ कैटेगराइज करना चाहते हैं, यू कैन से दैट फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल इश्यूज, तो प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर यू कैन से दैट स्टैंडर्डाइज वर्डिंग, पैरा पोजिशनिंग कह सकते हैं आप, language is one of the professional issues, ठीक है, so it should be conclusive and stuff।
एंड इफ यू वांट टू ऐड मोर पॉइंट्स, अगर आप खुद चाहते हैं कि अपने नोट्स के लिए फर्दर आप इसके अंदर लिखना चाहें फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंसिंग, या स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग यूज नहीं कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में इन आवर ओपिनियन इज अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, क्वालिफाइड ओपिनियन इज अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज। आप हर जगह पे क्वालिफाइड लफ्ज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यूज ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू इज अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है। टाइप ऑफ ओपिनियन एंड इट्स अप्रोप्रिएटनेस, नोट एंड लॉ रेफरेंस को भी मैं प्रोफेशनल इशू के अंदर डाल सकता हूँ कि आपने प्रॉपर तरीके से, बल्कि मैं इसको यहाँ पे कंटेंट कंटेंट ऑफ कंटेंट ऑफ पैरा में आप डाल सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल नोट है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, या आपके पास एलिमेंट्स ऑफ मॉडिफिकेशन अगर कोई है, वो आपने अगर कोई मिस कर दिया है तो ये आपके पास आ सकता है, ठीक है। So Baki, I think if we have these 7-8 points in independently, or we have these 4 broad categories of content of para, type of opinion, professional issues, and amounts and quantification in terms of materiality. ये भी तो मेरे पास point मैंने कहीं use कर लिया है ना, amount and quantification, ये content of para के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं इसको अपने अपने हिसाब से, यू वांट टू मेंशन, you want to keep these 8 points as they are, so that's not of course not an issue, but broad categories क्या है, प्रोफेशनल इश्यूज, लैंग्वेज के मसले, पैरा पोजीशनिंग ऊपर नीचे कर दी, वर्डिंग स्टैंडर्डाइज यूज नहीं की, that's also that's प्रोफेशनल इशू फॉर मी, ठीक है। टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएटनेस, जाना ही नहीं चाहिए था वो पैरा और डाल दिया आपने, ठीक है, तो वो मसला है। कंटेंट ऑफ पैरा में कभी कभार नोट नहीं होता, आईएफआरएस का रेफरेंस नहीं होता, फैक्शन फिगर्स नहीं होते, एलिमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन पूरे नहीं होते, अमाउंट्स एंड क्वांटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिटी नहीं होती है, वो खैर फैक्शन फिगर्स में भी आ सकता है, बट हम उसमें उसमें ऑफ कोर्स डिस्क्लोजर भी इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने उसको दोनों को अलग अलग किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर जिसकी बेसिस के ऊपर जवाब आएगा। तो आपके जहन में कॉन्सेप्ट है कि जिस पैराए, जिस लेंस के अंदर आप देख के सवाल को उसमें से निकाल सकते हो मसले मसाइल, और उन मसले मसाइल को पॉइंट्स की सूरत में प्रेजेंट कर सकते हो। नाउ दैट्स द, ये बेसिकली कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करेगा, बट व्हाट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, बट यू माइट नॉट बी फॉलोइंग इट एवरी टाइम, बट ये कंटेंट का स्ट्रक्चर है, कंटेंट का स्ट्रक्चर है। तो ड्राफ्टिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ड्राफ्टिंग का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि ऑडिट, रिपोर्ट, अप्रेजल, तो ये आपको कंटेंट फॉर्म फराहम करेगा, ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाला। बट ड्राफ्टिंग में बेसिकली यू नीड कि यार मैं इस कंटेंट को लिखूं कैसे, तो पहले लिखो प्रॉब्लम, या फॉर एग्जांपल इशू लिखो कि वो क्या कर रहा है, या फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या बोलूं, मैंने लिखा हुआ था एक पॉइंट, हाँ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम या इशू कह लें आप, दोनों में से कोई भी बात, ठीक है। प्लस ऐड करते हैं उसके अंदर आप सजेस्टेड या करेक्ट, या करेक्ट सजेस्टेड या करेक्ट ट्रीटमेंट कह लें, या करेक्ट इन्फो कह लें आप, ठीक है, करेक्ट ट्रीटमेंट कहना चले आसानी के लिए, ठीक है। सो आपने बताया भाई उन्होंने वी फील कहा, तो वी फील क्यों कहा, तो फील फील की जगह होना नहीं चाहिए, वी फील की जगह होना चाहिए वो मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। या इस तरह की बातें जो आप लिख रहे हो कि हम भाई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। सो यू माइट नॉट बी फॉलोइंग इट एवरी टाइम, लेकिन बहुत जगहों पे बड़ा वाजे होता है कि यार हेडिंग नहीं है तो हेडिंग होनी चाहिए, तो ये तो बड़ा वाजे है, ठीक है। या फिर सब्सिडी का नाम मेंशन नहीं है तो सब्सिडी का नाम मेंशन होना चाहिए। तो इस तरह के सब जो पॉइंट्स है ना, वहां पर इस तरह के पॉइंट्स में आप ये दो बातें
अलग अलग होती नहीं है, एक बात करेंगे तो दूसरी बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत जगहों पे आपको बताना होता है कि होना कैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कंटीजेंट कंसिडरेशन का अमाउंट मेंशन नहीं है, तो अमाउंट मेंशन होना चाहिए, ये बात सही है। और ये बात इससे वाजे हो रही है कि जब मैं कह रहा हूँ कि अमाउंट मेंशन नहीं है तो अमाउंट मेंशन होना चाहिए, बात सही है। लेकिन अमाउंट मेंशन कैसे होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने बताया कि एज अ प्रैक्टिस द इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड एज इट अफेक्ट्स एसेट्स, एक्सपेंस, प्रॉफिट टू शो द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट अकाउंट हेड्स। So of course you can bring out the point जिसमें आप इशू बताओ, और इशू के साथ साथ उसका जो करेक्ट ट्रीटमेंट है या कोई और एक्सप्लेनेशन ऑफ द सजेस्टेड पॉइंट है जो आप सजेस्ट कर रहे हो, आपका सजेशन जो है वो आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? सो ये दिस कुड बी अ फॉर्मेट ऑफ योर राइटिंग, ऑफ योर ड्राफ्टिंग ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे भाई? पॉइंट्स मिलेंगे ऊपर वाले जो तीन मेजर कैटेगरीज मैंने बना दी हैं। और पॉइंट को ड्राफ्टिंग कैसे करोगे? ड्राफ्टिंग ऐसे करोगे। अब इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए, मतलब और क्या चाहते हो यार, बताओ। हलवा बन गया ना अब ये। अब मेरे ख्याल में और कोई पॉइंट है तो मुझे बताइए, ताकि हम इसको कंक्लूड करें। हमने कहाँ एडवर्स कंसिडर किया? हमने तो ऊपर उसको क्वेश्चन कर दिया ना, जब हमने कहा कि यार non-recognition would less likely result in adverse opinion. In fact, if the matter is material and not pervasive, then qualified would be appropriate. तो मैं तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन कर दिया ना, तो उसको हमने एडवर्स कंसिडर नहीं किया। हमने इसमें उस वक्त हमने ये कहा था कि अगर एडवर्स होगा तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन जाएगा। फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन अकाउंट हेड्स, क्या मतलब? अ फ्रेंड फॉर एवर। फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स बेसिकली, वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स तो यही है ना कि आपका सजेस्टेड है वो, यानी आप ये कह रहे हो कि यार इम्पैक्ट होने चाहिए, तो आप बेसिकली सजेस्ट कर रहे हो ना कि यार वो आपका दूसरे पार्ट में आ जाएगा ना, जो आपने नीचे मैंने लिखा है, प्रॉब्लम इशू प्लस सजेस्टेड करेक्ट ट्रीटमेंट। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है भाई? फाइनेंशियल इम्पैक्ट। ये बात समझ में आती है कि ये कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ये समझ में आ रही है बात? डू यू गाइस अंडरस्टैंड इट, यस और नो? चलें, परफेक्ट है। सो देयर इज एनी मोर क्वेश्चन, वी कैन टेक दोस क्वेश्चंस बिफोर वी कंक्लूड। 5:36 हो चुके हैं और मेरे ख्याल में कुछ इलाकों के अंदर इफ्तार का वक्त करीब होगा। मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा, बिल्कुल ठीक है। हलवा सोल्यूशन, बिल्कुल कर देंगे यार। एंड आई वुड सजेस्ट, देखें आप ये जो मैं आपको सिर्फ ऑडिट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके इसके साथ साथ अगर आप देखें ना, तो यू इफ यू वांट टू स्टडी एनी सब्जेक्ट, always try and find structure out of that subject, topic, subtopic, you know, chapter। स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश किया करें, ताकि फिर आपको के जहन में कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे। तो फिर जो भी सवाल आएगा उसको आप उसको उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के पैराए में देख के अटेम्प्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। यार लास्ट वेबिनार मेरे पुराने वाले लैपटॉप में है, वो खराब हो गया, उसका कुछ हार्डवेयर, और वो दिया हुआ है बनने को, और आपको पता है लॉकडाउन के माहौल में चीज़ें बड़ी देर हो रही हैं, तो लैपटॉप अभी तक आया नहीं, और मैं खुद अभी नए लैपटॉप में कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये वर्ड पैड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एमएस वर्ड भी नहीं है, सही है। वर्ड पैड की फाइल में देने वाला हूँ आप लोगों को, आप देख लीजिएगा ये। सर वो लास्ट वेबिनार नहीं, अच्छा व्हाट विल बी द रिवीजन टेक्निक इन दिस टाइम, नो वरी। आईएफआरएस के लिए वो वेबिनार करते हैं यार, अभी ये पता है आपको इतना प्रेशर है, मतलब आप देखें मैं सुबह से शाम तक इफ्तार तक जो है ना, मैं रिपोर्टिंग की रिकॉर्डिंग ही कर रहा होता हूँ और ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो देखते हैं इंशाल्लाह यार, मैं कोशिश करता हूँ, करते हैं।
So what should be revision techniques in this time? Revision technique यार, आप अगर जर्नल मेंटेन करते हैं ना, जर्नल मेंटेन से मुराद नोटिंग्स वगैरह कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस की, जो आप आंसर्स कर रहे हैं, तो कुछ तो आप अच्छे सवालात को आइडेंटिफाई जरूर कीजिएगा कि यार ये अच्छे सवाल आते हैं, उसको मुझे पढ़ के जाना है। प्लस जो आप गलतियां कर रहे हैं ना सवाल करते टाइम पे, जो चीजें भूल रहे हैं सर, तो जो आप अगर आप जो गलतियां कर रहे हैं ना, जो आप चीजें भूल रहे हैं, वो आप अलग से नोट कर लें, लिख लें। यानी आप लिख लें कि वो मैं ये वाला पॉइंट में भूल जाता हूँ या ये वाला पॉइंट में भूल जाती हूँ, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को फिर आपने याद करना है, रिफ्रेश करना है। देखें, वो चीज़ जो आपको याद आ रही है प्रैक्टिस करते टाइम पे, एग्जाम में भी इंशाल्लाह याद आ जाएगी। लेकिन वो चीज़ जो आप भूल रहे हैं एग्जाम, नॉन एग्जाम सिचुएशन के अंदर, तो फिर आप एग्जाम में ज़रूर भूलेंगे। आप याद रखिएगा, मुश्किल हो जाती है याद रखना, मुश्किल होती है। इसलिए आपको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिवाइज करें। उनमें से जो गलत भूल आप जो भूल रहे हैं पॉइंट, बिकॉज यू माइट बी फॉरगेटिंग थिंग दैट प्रॉब्ली द अदर पर्सन माइट नॉट बी। सो इफ यू आर फॉरगेटिंग समथिंग दैट प्रॉब्ली इज योर वीक पॉइंट, और उसको आप लिख लें, उसको फिर आप रिवाइज करिएगा। फिर बाकी यार आई थिंक स्टैंडर्ड आप मैंने बताया हुआ है, मैंने अपने नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है पूरा, और उसमें मैंने बताया हुआ है कि कितनी मरतबा पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो वो तो आपने पढ़ लेना है। कोड ऑफ एथिक्स को कम से कम 3 से 4 मरतबा जरूर पढ़ना है। उसमें से सुकून का सवाल आ जाता है एक बड़ा, 10-12 मार्क का गेनिंग एरिया होता है, उसको जरूर आपने पढ़ना है ताकि कोई भी इशू हो उसको आप अटेम्प्ट कर सकें। इसके अलावा आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो अपेंडिक्स हैं, उन चीज़ों को रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस करें, द बेस्ट वे टू डू इज प्रैक्टिस। और कुछ ना कुछ फॉर एग्जांपल बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम में और आपके लास्ट ड्राफ्टेड आंसर में। यानी आपके लास्ट ड्राफ्टेड आंसर के अंदर, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 12 दिन पहले आपने आखिरी मरतबा सवाल सॉल्व किया था, और 12 दिन के बाद जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपने आखिरी दिन के अंदर भी कुछ लिखा नहीं, और आप सीधा एग्जाम में बैठ गए 12 दिन के बाद, और आपने आपका आपका जो हाथ है लिखते हुए चलता रहना चाहिए, और उसमें आपकी प्रैक्टिस हो रहनी चाहिए। लेटेस्ट सीओई एंड प्रीवियस ऑन, और बाकी आप मेरे ख्याल में आप जानते हैं कि आपने सारे एरियाज को मैंने कवर किया हुआ है, तो आप जानते हैं कि आपने कौन कौन से एरियाज में किस तरह से स्टैंडर्ड को पढ़ना है, समरीज पढ़नी है, ठीक है, आईएफआरएस समरीज पढ़नी है। तो ये है। तो लेटेस्ट सीओई एंड प्रीवियस ऑन में क्या डिफरेंस है? लेटेस्ट सीओई जो 2019 का कोड ऑफ एथिक्स है, उसमें दो चार चेंजेस आई हैं, लेकिन डेफिनेटली वो भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो मैं भी आप उसमें आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। हाउ मेनी मिनिमम रिविजंस रिक्वायर्ड? देखो, स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स को तो आपने कम से कम जो है ना वो 3-4 मरतबा पढ़ना है। बाकी एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए हुए अपने नोट्स में, जो मैनुअल है स्टार्ट में मैंने लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज भी आइडेंटिफाई किए हैं, वो भी आप देख। बाकी मैं आपकी जगह हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे 4 पेपर हो, 3 पेपर हो, तो मैं कम से कम जो है वो एक मरतबा स्टैंडर्ड पढ़ रहा हूँगा, और दूसरी मरतबा लेट्स सपोज मेरे पास प्रेशर बहुत है, तो 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चे के पास बहुत प्रेशर है और दूसरे बच्चे के पास प्रेशर नहीं है, ठीक है। उसके पास सिर्फ ऑडिट है, ऑडिट के साथ एक और आपका सब्जेक्ट है। हल्का फुल्का से मुराद पहले अटेम्प्ट किया हुआ है, फेल हो गया, फलाना ऐसा दोबारा। तो ये